નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી આપની એસપીએસના ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં સ્વાગત છે. આજે આપણે કક્ષા 8 વિષય હિન્દી એમાં કાવ્ય 1 કે તેરી હે ઝમી કાવ્ય 1ના પ્રશ્નોત્તરીનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તો ચાલો આપણે અહીં કાવ્ય 1ની પ્રશ્નોત્તરી જોઈએ. તો એમાં સૌપ્રથમ આપણે આપેલા છે એ 2 માર્કવાળા પ્રશ્ન છે. તો હું અહીંથી તમને સંભળાવું છું અને સમજાવું છું, તે તમારે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવાના અને સમજવાના રહેશે. તો ચાલો, એમાં 2 માર્કમાં પેલો પ્રશ્ન છે કે આપકે મત સે સૃષ્ટિ મેં સર્વોપરી કોણ હૈ, ક્યું? સર્વોપરી એટલે સૌથી ઉપર, કે સૃષ્ટિમાં સૌથી ઉપર કે મહાન કોણ છે અને કેમ? તો મેરે મત સે सृष्टि में એટલે કે दुनिया में भगवान सर्वोपरि है. कौन है? भगवान. क्योंकि उसकी मर्जी से ही दुनिया चलती है, કે ભગવાનની મરજીથી જ દુનિયા ચાલે છે. કે उसके सामने हम सभी का सर झुक जाता है, કે એની સામે આપણા બધાનું સર છે એ ઝૂકી જાય છે. સમજાણો પેલો પ્રશ્ન કે શું કહે છે કે आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है? तो सृष्टि में सर्वोपरि भगवान है. क्यों? तो कि उसकी मर्जी से ही दुनिया चलती है और उसके सामने हम सभी का सर झुक जाता है, इसलिए. समझाणो. હવે એના પછીનો નેક્સ્ટ બીજો પ્રશ્ન છે કે તું अपनी नज़र हम पर रखना, તું अपनी नज़र हम पर रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? કે ભગવાનને એવું કહે છે, પણ કેમ કહે છે? तो जवाब कि तू अपनी नज़र हम पर रखना ऐसा कवि इसलिए कहते हैं कि. क्यों कहते हैं? तो ईश्वर उसकी हर हाल में खबर रखे, કે ભગવાન છે એની ગમે હાલતમાં ખબર રાખે, ઓર દુઃખ કે સમય ઉસકે સાથ રહે, કે દુઃખના સમયે ભગવાન છે એની સાથે રહે. એટલા માટે એવું કહે છે કે તું અપની નજર હમ પર રખના. સમજાણો. હવે આપણે એના પછીનો એટલે કે ત્રીજો પ્રશ્ન જોશું. તો ત્રીજો પ્રશ્ન છે કવિ કિસે સબસે તાકત વાલા માનતે હૈ ઓર ક્યો? કવિ કિસે સબસે તાકત વાલા માનતે હૈ? તો જવાબ છે કવિ ઈશ્વર કો સબસે તાકત વાલા માનતે હૈ. કિસેની જગ્યાએ ઈશ્વર. તો કવિ ઈશ્વર કો સબસે તાકત વાલા માનતે હૈ. ક્यों? तो कि क्योंकि वही हमारे ऊपर आई आफत को टाल सकते हैं, કે હમ આપણી ઉપર જે કંઈ આફત કે મુસીબત આવે એને એ જ ટાળી શકે છે. એટલા માટે કહે છે કે ક્યોંકि वही हमारे ऊपर आई आफत को टाल सकता है, इसलिए ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं. સમજાણો. તો હવે એના પછીનો પ્રશ્ન છે નંબર 4. नंबर 4, कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं? कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं? तो कवि खुद से कहते हैं कि ईश्वर सबसे बड़ी ताकत वाला है. કવિ એવું કહે છે કે ઈશ્વર છે એ સૌથી મોટી તાકતવાલા છે. वो चाहे तो हमें दुनिया में रख सकता है या मार सकता है, કે ઈશ્વર જો ચાહે તો આપને દુનિયામાં રાખી શકે અને મારી પણ શકે. હમ સબ इसलिए उसके सामने सिर झुकाते हैं, કે આપણે બધા એટલા માટે જ એમની સામે સર ઝુકાવીએ છીએ. વહી હમારી સારી મુસીબત દૂર કર શકતા હે, કે ઈશ્વર એક જ છે કે જે આપણી મુસીબતને દૂર કરી શકે. એટલા માટે કવિ છે ઈશ્વરને સૌથી મોટી તાકતવાળા કહે છે. સમજાણા મિત્રો. આ આપણા 2 વાક્યના પ્રશ્ન થયા. હવે એના પછી આપણે મોટા પ્રશ્ન જોવાના છે, પણ આ 2 વાક્યના પ્રશ્ન છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. હવે એના પછીના આપણે મોટા પ્રશ્ન તરફ જઈએ. તો એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે પ્રશ્નો કે ઉત્તર. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે આપ ભગવાન સે ક્યા પ્રાર્થના કરતે હે? આપ ભગવાન સે ક્યા પ્રાર્થના કરતે હે? તો એનો જવાબ હવે એમ કીધું છે કે આપ, તો આપણે શું કહેવાનું કે मैं भगवान से यह प्रार्थना करती हूँ कि, मैं भगवान से यह प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, કે ભગવાન છે મને સદ્બુદ્ધિ આપે. हर अच्छा काम करने के लिए भगवान मुझे आत्मविश्वास दे,
कि गमे सारू काम करवा माटे भगवान मने आत्मविश्वास दे और जो अच्छा काम मैं कर रही हूँ उसमें हमेशा मुझे सफलता दे। कि ए भगवान पासे एवी प्रार्थना करे छे कि भगवान एने सद्बुद्धि आपे अने जे सारू काम करे एमां एने आत्मविश्वास दिए अने जो अच्छा काम मैं कर रही हूँ उसे मुझे सफलता दे। कि जे सारू काम करे एमां एने सफलता दिए। हर गलत काम करने से भगवान मुझे दूर रखे, कि खोटू काम करवाथी भगवान मने दूर राखे, एवी भगवान ने प्रार्थना करी छीए। समझाणो? हवे आपणे एना पछीनो प्रश्न जोशुं। तो प्रश्न नंबर 2 कि आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों? तो प्रश्न शू है कि आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं? तो एमां छे कि मैं, आप एटले के मैं ईश्वर से प्रार्थना, हवे आपणे प्रार्थना क्यारे करीए? तो सवारे अने सांजे। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना सुबह और शाम को करती हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना सुबह और शाम को करती हूँ। पहला प्रश्ननो जवाब थई गयो। हवे छे क्यों? तो क्यों करते हैं आप? तो सुबह प्रार्थना करते समय मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ। कि सवारे ज्यारे प्रार्थना करूँ त्यारे हूँ भगवाननो आभार मानु छूँ कि उसने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। सुबह प्रार्थना करते समय भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। और शाम को, तो शाम को मैं उसका फिर शुक्रिया अदा करती हूँ कि सांजे हूँ फरी पाछो एनो आभार मानु छूँ कि आज का दिन अच्छी तरह बीता। समझाणु मित्रों? कि आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों? तो सुबह और मैं ईश्वर से प्रार्थना सुबह और शाम करती हूँ। सुबह प्रार्थना इसलिए करती हूँ कि भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी। और शाम को फिर शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आज का दिन अच्छी तरह बीता। समझाणो ने? तो हवे एना पछीनो आपणे त्रीजो प्रश्न जोशुं। तो त्रीजो प्रश्न है, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? कि भिन्न भिन्न धर्म एटले अलग अलग धर्मना लोको प्रार्थना करवा माटे क्यां क्यां जाए? तो आपणे प्रार्थना करवा माटे क्यां जाए? तो मंदिर में। एवी रीते अलग अलग धर्मना लोको प्रार्थना करवा माटे क्यां जाए? तो ए छे। तो चलो आपणे एनो जवाब जोईए। तो जवाब में छे कि भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए अलग अलग धर्म स्थान पर जाते हैं। कि प्रार्थना करवा माटे अलग अलग एना धर्मना धर्म स्थाने जाय छे। हवे हिंदू होय हिंदू, तो हिंदू अपने मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं। हिंदू लोको छे ए मंदिरे जाए, मंदिरे शू करे? तो एना भगवाननी पूजा करे। एवी ज रीते मुस्लिम छे, तो मुस्लिम लोको छे ए मस्जिद में जाए, तो मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं। ईसाई लोग होते हैं वो चर्च में जाते हैं। और पारसी अगियारी में जाकर प्रार्थना करते हैं। एना पछी छे सिख, तो सिख लोग छे गुरुद्वारे में जाते हैं। और जैन देरासर यानी मंदिर में जाते हैं। कि हिंदू है वो मंदिर में जाकर अपने भगवान की पूजा करते हैं। हिंदू तो के मंदिर, पछी मुस्लिम छे तो एनो मस्जिद, मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं। ईसाई तो के चर्च, पारसी तो अगियारी में जाकर प्रार्थना, और सिख तो गुरुद्वारे, अने जैन तो के देरासर। समझाणो? कि अलग अलग धर्मना लोको छे ए एना धर्म स्थान पर अलग अलग जग्याए जाय छे प्रार्थना करवा माटे। तो एना पछीनो प्रश्न नंबर 4 जे जोईए आपणे। तो प्रश्न नंबर 4 छे कि कवि खुदा यानी कि ईश्वर, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? तो कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि, कवि ईश्वर से कहना चाहते हैं कि तू बड़ा मेहरबान है। कि तू बड़ा मेहरबान है, तेरी मर्जी से ही हम इस दुनिया में आए हैं। कवि ईश्वर ने एवुं कहे छे कि तू सौथी मोटो मेहरबान छे, कि तारी मर्जी थी ज अमे आ दुनिया में आव्या छीए। तेरी रहम से ही हमने शरीर और प्राण पाए है। कि तारी कृपा थी ज अमने आ शरीर अने प्राण मळ्यो छे।
तू हमेशा तेरी नज़र हम पर रखना, कि तू तारी नज़र छे ए हमेशा हमारी ऊपर ज राखजे। हम तेरे आगे अपना सर झुकाते हैं, कि अमे बधा छे ए तारी सामे सर झुकावीए छीए। तू ही हमारी आफत को टाल सकता है, कि अमारा ऊपर जे आफत आवे छे एने तू एक ज टाળી શકે છે। समझाणो मित्रों? तो અહીં આપણા મોટા પ્રશ્નો કમ્પ્લીટ થાય છે, કે આપણે પહેલાં 2 વાક્યના પ્રશ્ન જોયા 4 અને એના પછી મોટા પ્રશ્ન 4 જોયા। હવે મિત્રો આ કાવ્ય 1ના ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે જે તમારે પાકા કરવાના રહેશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે આ પ્રશ્નોત્તરીને જોયા બાદ આપણો આજનો આ લેક્ચર કમ્પ્લીટ થાય છે, કે હવે આજના આ લેક્ચરમાં તમારે શું હોમવર્ક કરવાનું છે? તો કે આપણે જે 2 માર્કના 4 પ્રશ્ન પહેલાં જોયા એ 4 પ્રશ્ન તમારે હોમવર્કમાં 2 વખત લખીને પાકા કરવાના રહેશે। થેન્ક યુ।